السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، آج کی یہ آڈیو سن کر آپ تمام حضرات کا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت دنوں کے بعد یہ دو دیو کے بندر ہاتھ لگے ہیں۔ اس دیو کے بندر نے ایسا اعتراض کر دیا جس اعتراض کا کوئی معنی نہیں۔ بہرحال آدمی جس سے نفرت کرتا ہے اس کے اندر کمیاں نکالتا ہے، اور جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو اس نے بغض و عداوت میں میرے اعلیٰ حضرت کے کلام پر، میرے اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے یا کہے ہوئے الفاظ پر اس نے اعتراض کیا۔ بہرحال وہی اعتراض میں نے دیوبند کے مولویوں سے کیا، اور انہوں نے وہی بات کہی جس بات کو لے کر ان دو دیو کے بندروں نے طنز کسنے کی کوشش کی۔ خیر، انسان جب آسمان کی طرف تھوکتا ہے تو وہ تھوک آسمان پر نہیں جاتا، بلکہ خود اس کے منہ پر، اس کے گریبان میں آ کے گرتا ہے۔ تو اسی طرح آج پھر دو دیوبندروں کے ساتھ ہوا ہے۔ اس پوری آڈیو کو باغور سننا، بغیر کاٹے پیٹے، اور بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا تاکہ آپ حضرات کو بات سمجھ آئے۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں بار بار کہ انسان بدعقیدہ اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی عقل سلامت رہے، اور جب عقل چھن جائے گی، عقل بک جائے گی، عقل بیچ کے کھا لے گا، عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہے گی، تو پھر کچھ بھی بن سکتا ہے۔ وہابی بن سکتا ہے، دیوبندی بن سکتا ہے، شیعہ بن سکتا ہے، کچھ بھی بن سکتا ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، کسی بھی گمراہ فرقے میں جا سکتا ہے، کسی بھی گمراہ فرقے کو ایکسپٹ کر سکتا ہے، مگر جب تک عقل رہے گی تو الحمدللہ وہ کبھی بھی بھٹک نہیں سکتا، وہ ایمان والا ہی رہے گا۔ عقل ضائع ہونے کے بعد، عقل نہ رہنے کے بعد بدعقیدہ انسان بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، عقل رہے گی تو انسان بدعقیدہ نہیں بنے گا۔ جب عقل غائب ہو جائے گی، چھن جائے گی، لٹ جائے گی، تو پھر انسان بدعقیدہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اپنے دین متین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے دین لیتا ہے تو اس کی عقل چھین لیتا ہے۔ تو پہلے اس کی عقل چھینتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی پھر۔ بہرحال آپ اس آڈیو کو سن کر فیصلہ کریں، جب تک میں کال اٹھاتا ہوں۔ کس کا کال آ گیا ہے؟ بندہ اس حالت میں سوتا ہے تو مطلب لفظ محمد بن جاتا ہے۔ یس، ایسا گول پیر 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 جو ہے وہ دال بن جاتے ہیں، پیر دال بن جاتے ہیں۔ جی جی جی، یس، ہاں ہے نا؟ ہاں، تو ایسے ہی میں نے اس کو بتایا تو بولے اچھا۔ میں نے کہا یہی طریقہ ہے سنت۔ تو بولے کہاں لکھا ہے؟ یہی ہے۔ سنا جناب حضرات، آپ نے مفتی ہارون ندوی صاحب کیا بتا رہے ہیں۔ چلیے ابھی اتنے پر ہی بس نہیں ہے، چلیے ایک اور مفتی صاحب کی گفتگو ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ دوسرے مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ ہلو ہلو، السلام مفتی علیکم۔ منور صاحب بول رہے ہیں؟ جی اچھا، اور کیا حال ہے صاحب؟ جی بہت اچھا ہے، آپ بتائیں بھائی جان کیا حال ہے؟ ہاں جی الحمدللہ سب بڑھیا، اللہ پاک کا فضل و کرم ہے۔ گھر پریوار سب ٹھیک ہے؟ ہاں سب ایک دم بہتر ہیں۔ اور سنا؟ میں یہ کہہ رہا تھا مفتی صاحب، کوئی مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ سونے کا صحیح طریقہ، سنت طریقہ کیا ہے، کس طرح مطلب سونا چاہیے؟ اچھا، تو آپ نے کیا بتایا؟ تو میں نے تو یہی بتایا کہ قبلہ رخ ہو کے سونا چاہیے، اور مطلب کان اور گال مطلب دونوں پہ مطلب سیدھا دانا ہاتھ رہنا چاہیے، سمجھے؟ کیا کہہ رہے حسان بھائی جان؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو اس طرح بتایا جو مجھے معلوم ہے، جو مجھے علم ہے۔ آپ کی طرف نیٹ ورک کی پرابلم ہے شاید، آپ کی آواز
میں کہہ رہا ہوں ان کا شاید نیٹ ورک کی پرابلم ہے پھر آپ کی طرف. جی اب فرماؤ کیا. اچھا اچھا, میں نے تو یہ بتایا کہ قبلہ رخ ہونا چاہیے بندہ, السلام علیکم. قبلے کی طرف کو جو ہے رخ کر لے. اللہ کا کرم ہے. جی ہاں, اور داہنا ہاتھ اپنے کان کے نیچے اور گال, یعنی اس کا پورا منہ اس کے ہاتھ میں آ جائے, ایسا کر کے مطلب ہاتھ کو کرے, جی اور پیر جو ہے تھوڑا سا سکوڑ لے. جی یعنی جی اور مفتی ہارون ندوی صاحب سے بھی میری بات ہوئی تھی ابھی, جی تو جی انہوں نے بھی یہی طریقہ بتایا کہ مطلب پیر اس حال میں ہو جائیں گے, مطلب دال کی طرح مڑ جائیں گے. جی. تو بولے یہ سنت طریقہ ہے. تو کسی سے بات ہو رہی تھی میری, تو وہ مان نہیں رہا تھا, اعتراض کر رہا تھا. اچھا, کیا کہہ رہا تھا وہ؟ کہہ رہا تھا یہ تو پھر بے ادبی ہو گئی, توہین ہو گئی. میں نے کس کہا یار چیز کی؟ توہین کیسے ہو گئی؟ دال کی توہین ہو گئی, مطلب لفظ دال, پیر جو ہے پیر دال بنا دیا. اچھا, تو میں نے تو کہا یار سونے کا تو سونے کے لیٹنے کا سنت طریقہ یہی ہے جو بھائی حسان بھائی جان کے دائیں کروٹ پر دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر قبلے جی کی طرف منہ کر کے سوئے. جی, جی, اور تو پیروں اس کو میں تھوڑا کیا سا ہوتا؟ سکوڑ لے, ہے نا. پیروں کو جب تھوڑا سا سکوڑے گا تو وہی لفظ دال بن جائیں گے پیر, ہے نا, گھٹنے سے نیچے کو. تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے لفظ دال کی توہین کر دی, حضور کی توہین کر دی. حضور کے میم نام میں جو لفظ دال ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا بول رہے تھے. تو میں نے کہا بھائی دیکھو, میں نے کہا مجھے تو یہی طریقہ معلوم ہے. تو آپ حسان بھائی جان یہ کہہ دیتے کہ بھائی دائیں کروٹ پر دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے سوئے, بس اتنا کہہ دیتے. آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی آگے بحث کرنے کی, جب ایسا آدمی ملے تو بس یہ کہہ دینا چاہیے بھائی. ہاں, مگر مفتی صاحب میں نے جو ہے ان کو بتایا, وہ مانے نہیں, کافی بحث ہوتی رہی. جی. ہاں, پھر میں نے مفتی ہارون ندوی صاحب کو کال کیا. پھر میں نے سوچا کہ پہلے میں نے آپ کو ہی کیا تھا, میں نے کہا میں مفتی منور قاسمی صاحب کو کال کروں, بتا دیں گے. اچھا اچھا. تو پھر اس ٹائم پہ آپ نے اٹھایا تھا فون, مگر کسی اور کا فون آ گیا میرے پاس. جی 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 جی. ہاں, چلیے بہت اچھا حسان بھائی. بھائی جان دعاؤں کی درخواست ہے. ٹھیک ہے صاحب, ٹھیک ہے, شکریہ. جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. سنا حضرات آپ نے, یہ دیکھیے, یہ دوسرے مفتی صاحب تھے, مفتی منور دیوبندی قاسمی. دو دیوبندیوں کا حوالہ میں نے آپ کو دے دیا ہے, دو دیوبندیوں سے ثبوت میں نے دیا ہے, اور میں یہی کرتا ہوں. جو بھی دیوبندی اٹپٹی باتیں مجھ سے کرتا ہے یا کوئی فالتو کا الزام لگاتا ہے, تو میں اسی کے گھر کے مولویوں سے بات کر کے ان کو ذلیل و رسوا کرتا ہوں. اب اگر انہیں غیرت شرم حیا کچھ باقی ہے تو یہ بے شرم بے غیرت لوگ توبہ کریں, رجوع کریں, یا پھر اپنے ان دیوبندی مفتیوں پر بھی حکم لگائیں, فتویٰ لگائیں. ٹھیک ہے, آپ ان کی گفتگو سننا کہ کس طرح کی یہ گفتگو کر رہے تھے, آپ پوری گفتگو کرنا. میرا کام ہی یہ ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے اس کو واضح کر دینا. دیوبندی شیطانوں کا چہرہ عوام اہل سنت کے سامنے لا کے رکھ دینا, یہی میرا کام ہے. الحمدللہ سامنے والا کتنے کلر بدل کے آ جائے, الحمدللہ اس کے اوریجنل کلر میں لا کے رکھ دینا, یہی نور حسن کا کام ہے. خیر, سنیں آپ دوسری آڈیو. آپ ہلو, جی, مفتی راشد صاحب بول رہے ہیں دارالعلوم دیوبند سے. جی اچھا اچھا, ہاں میں نے ہی کال کیا تھا, اب آپ کا میں نے کال دیکھا تو میں نے واپس کیا. جی. کوئی بندہ مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ سونے کا سنت طریقہ کیا ہے, مطلب کس طرح سونا چاہیے سنت طریقے میں. اچھا, میں اس رسول اکرم کتاب ہے یا کوئی کتاب, اگر آپ کل فون کریں تو میں آپ کو بتا دوں گا دیکھ کر حوالے. جی جی جی, ہاں اس کا حوالہ بھی بھیج دیجیے گا, بڑی مہربانی ہوگی آپ کی مفتی صاحب. السلام علیکم. ٹھیک ہے, جی ٹھیک. ٹھیک, بہت بہت شکریہ, بہت بہت. ہیلو, آپ جس ویکتی سے
हेलो हेलो जी कौन? हेलो हाँ जी कौन? हेलो अस्सलाम वालेकुम मन इत्तबा अल हुदा। कौन बोल रहा है? जी नूर हसन साहब। हाँ आप कौन बोल रहे हैं? और खैरियत से हैं आप? मैं कह रहा हूँ कौन बोल रहा है? अजीजुर रहमान कहाँ से? बनारस से। इतना जल्दी भूल गए यार। बनारस। किस मसलक जी। से हैं? अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद। अच्छा अच्छा जी। अरे मुफ्ती हैं मौलवी हैं? नूर हसन साहब आपकी याददाश्त लगता है बड़ी कमजोर है। मुफ्ती हैं मौलवी हैं? जी अभी सब ये सारी बातें तो आपको बताया गया था अभी। अभी अभी कब बता दिया आपने? अरे अभी मतलब कि ये 15 दिन हुआ होगा। इतना जल्दी आप भूल जाएंगे नूर हसन साहब, कैसे रहेगा? आप जो है तो अपने बरेलवी मसलक के मुनाजिर हैं, याददाश्त इतनी कमजोर रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? किसने कहा कि मैं बरेलवी मसलक का मुनाजिर हूँ? अच्छा तो देवबंदी मसलक के मुनाजिर हैं क्या? नहीं, कहा किसने कि मैं मुनाजिर हूँ? अच्छा अच्छा मुनाजिर नहीं है आप? किसने कहा? अच्छा मुनाजिर नहीं है हजरत, नहीं, ये कहा नूर हसन साहब मुनाजिर किसने? नहीं है, ये खुद इकरार करें ये मुनाजिर नहीं है, तो फिर आप क्यों मतलब बात करते हैं सबसे? नहीं, कहा किसने कि मैं मुनाजिर हूँ? मेरा दावा है। चलिए खैर 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 चलिए, आपने मान लिया कि आप मुनाजिर नहीं। अच्छा आप तो है ना मुनाजिर? नूर हसन साहब आप मुनाजिर है ना? भाई मैं तो एक साहिल बन के आपसे एक सवाल करने आया हूँ नूर हसन साहब। खाली सवाल पूछना ही सिखाते हैं तुम्हारी जमात में? ये सवाल पूछना है आपसे एक छोटा नहीं, सवाल ही पहले मेरी बातों का जवाब दें। नूर हसन साहब सिर्फ खाली सवाल करना ही सिखाते हैं कि सवाल किए जाओ? नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो जवाब भी देते हैं। तो अच्छा आप जवाब भी देते हैं? जी जी अभी मैंने कॉल किया है, मैं सवाल करूंगा। आपको अगर सवाल करना आप कॉल कीजिएगा, ठीक है ना? नहीं तो आप पहले मुझे ये बताएं कि आप मौलवी हैं मुफ्ती हैं? जी जी मैं आपकी तरह हूँ। जी मेरा एक सवाल है नूर हसन। अच्छा मेरी तरह है तो मेरी तरह है ना, तो मुझे क्या मानते हैं आप? नूर हसन साहब नहीं, मुझे क्या मानते हैं आप? नूर हसन साहब सवाल करूं? एक सवाल मेरा होगा, एक सवाल तुम्हारा होगा। मेरे इल्म में मेरे इल्म में होगा तो जवाब दूंगा। हाँ बोलो। जी 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 चलिए ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके नजदीक रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सिर्फ जिस्म मुबारक की तौहीन गुस्ताखी है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्म मुबारक की तौहीन की गुस्ताखी है आपके नजदीक, आपके बरेलवी मसलक के नजदीक? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म हो जी, या किसी भी तरह से मेरे नबी के किसी भी औसाफ, किसी भी कमाल का कोई इनकार करता है, तौहीन करता है, ठीक है, जी, तो वो गुस्ताखी होगी। मगर तुम बताओ कि गुस्ताखी किसने है और क्या गुस्ताखी की है? हाँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्म मुबारक की तौहीन गुस्ताखी की तौहीन करना गुस्ताखी है ना? हाँ तो किसने की है जरा बताएं। हाँ 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 हाँ। अगर कोई बदबख्त खबीस ये कहे कि जब मैं सोता था तो अपने मेरा पैर लफ्ज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाल बनता था, अगर कोई बदबख्त अगर ये कहे ऐसा, तो ऐसे बदबख्त को आप क्या मानते हैं, मुसलमान है या काफिर है? ये जी हुजूर से मोहब्बत है और ये सोने का तरीका है और ये सुन्नत तरीका है। और जब बंदा इस हालत में सोता है, इस तरह से सोता है, तो वाकई बंदा अल्हम्दुलिल्लाह अपने रसूल की मोहब्बत में उस अंदाज में जब सोता है ना, तो लफ्ज मोहम्मद ही नजर आता है। और नजर ना आवे तो तुम एक मिनट, अगर नजर ना आवे तो वहां निशान लगा देना, ठीक है, या किसी बंदे को बुला के दिखा लेना कि जो बंदा जिस हालत में लेटा हुआ है, मतलब दाहिना हाथ अपने गाल से लगाया हुआ है, यानी सर और गाल दोनों आएगा इसमें, और जो कोहनी है, समझे, ये सर और कोहनी मिला के और उसका जिस्म जो मुड़ा हुआ है वो लगा के मीम और हा बन जाएगा। आई समझ में?
पैर से दाल बच सुन जाएगा हाँ मोहम्मद के। बिल्कुल 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 है, बंदा उसी हालत में मतलब आ जाता है, लफ्ज मोहम्मद दिखता है जब हुजूर के मोहब्बत में आदमी सोता है। यानी कि कहाँ उसका नापाक पैर और कहाँ जो है तो लफ्ज अबे मोहम्मद नापाक का और पाक की बात नहीं हो रही है। अगर नापाक अरे है तो यार। एक मिनट, अगर आप नापाक हैं तो फिर नमाज किस बात की पढ़ते हैं? ओ गुफरान भाई अरे सुनिए ना, जो है तो अगर आप वाकई नापाक हैं तो फिर नमाज क्यों पढ़ने जाते हैं मस्जिद में, बताइए? वो नापाक जिस नापाक तेरे पेट बंदे में ने जो कहा है, ए सुनिए तो ना। मुसलमानों, अरे, मेरा मैं एक नहीं वादा कह रहा है, हूँ, मैं मैं नहीं कह रहा इससे हूँ। सवाल करूंगा तो ये मेरे सवाल का जवाब नहीं देके जाएंगे, ड्राइवर और साहब, ये ड्राइवर उस साहब, बात पर ड्राइवर बहस साहब, कर रहे हैं जो तरीका सुन्नत है, जो सुन्नत तरीका है, जो सुन्नत रसूलुल्लाह है, जिस तरीके से सोने का हुक्म दिया। एक मिनट, हाँ हाँ, जिस तरीके से सोने का हुक्म है कि इस अंदाज में सो, इस तरह से सो, तो इस बंदे को उस सोने पर भी ऐतराज है, बताइए? रसूलुल्लाह की एक सुन्नत पर इनको ना। नूर हसन साहब, अब एक मिनट, मैंने एक मिनट, मेरा देखिए, कहाँ लिखा है? एक मिनट, मेरा पैरों से दाल बनाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अब तुम उसे किसी भी अंदाज में लेके जाओ। अब ये बताओ मुझे, आपकी जमात के आपकी सोना कहाँ लिखा है? एक मिनट, अब मेरा एक सवाल है आपकी तरफ। खुद कह रहा है मुसलमानों देखिए, मैंने तो कह दिया, ये तुम सो के दिखाओ। अगर तुम लफ्ज मोहम्मद ना मानो तो फिर बताओ, ऐसा तुम सो के दिखाओ मुझे उस हालत में। कौन सी किताब? नहीं, तुम सो के दिखाओ, अल्हम्दुलिल्लाह तुम सो के दिखाओ, फिर मैं बताता हूँ। बहरहाल ये तुम्हारी जहालत है। अब मेरा एक सवाल है, तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम्हारी किताबों में लिखा है कि बगैर वुजू के नमाज पढ़ने की इजाजत दी, शराब पीने की इजाजत दी, जिना करने की इजाजत दी। मुसलमानों, मेरा दावा है कि ये लोग मेरे इस सवाल का जवाब नहीं देंगे और जो सऊदिया का रियाल है उसकी तरह ये उसको निगल जाएंगे। मेरा दावा है ये मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। जी जनाब, अजीजुर रहमान देवबंदी, तू और तेरी पूरी जमात मिलके में जवाब नहीं दोगे, फोन काट के भागोगे। तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे। सारे अल्लाह नबी को गुस्ताख हो। नहीं, तुम्हारी जमात में बगैर वुजू के नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है, क्यों दी गई बताइए? के मोहम्मद का दाल बनाता। अरे जाहिल हो तुम, जाहिल लोग। देखो मुसलमानों, इनके यहाँ बगैर वुजू के नमाज पढ़ी जाती है, ये सवाल का जवाब बगैर वुजू के नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाती है, शराब पीने की इजाजत दी जाती है, जिना करने की इजाजत दी जाती है इनके यहाँ। गुफरान भाई, तुम मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दोगे। तुम्हारे यहाँ बगैर वुजू के नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई। देखो मुसलमानों, ये बदतमीजी करने लगे, देख रहे हैं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। और यही देवबंदियत की हकीकत है कि सिर्फ इनको सवाल करना सिखाया जाता है, और वो भी बेबुनियाद ऐतराज। इनकी हालत वही है कि डूबने वाला बंदा तिनके का सहारा तलाश करता है। अब इन काफिरों का कुफ्र जो है वो वादे कर दिया गया है अहले सुन्नत की तरफ से, और ये काफिर लोग बौखलाए हुए हैं। ड्राइवर काफिर तो अहमद रजा काफिर है तू काफिर है, तेरा थानवी काफिर था। अहमद रजा खान तू काफिर, तेरा थानवी काफिर, तू काफिर, तेरा थानवी काफिर। और तू अब मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देता? बता, बगैर वुजू के नमाज पढ़ने की इजाजत देने वाला इंसान काफिर है या मुसलमान? बता। फैज अहमद वैसी बोलता है, अहमद रजा। देखो मुसलमानों, ये जवाब नहीं देंगे। पूरी जमात देवबंदियत को मेरा चैलेंज है, कोई ये साबित कर दे कि बगैर वुजू के नमाज हो जाएगी तो मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। इन शैतानों के यहाँ बगैर वुजू के नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाती है। देखो ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं मुसलमानों, इसी बात से फैसला कर लेना। यानी इनकी किताबों में ये लिखा हुआ है, किताब का नाम है हिकायत औलिया, लिखने वाले का नाम है थानवी काफिर। धूल चटा देंगे। थानवी काफिर ने लिखा है, अपनी किताब हिकायत औलिया में इस हवाले को। देखो मुसलमानों, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। पूरी दुनिया देवबंदियत पर अल्हम्दुलिल्लाह नूर हसन के नाम का गलबा, नूर हसन के नाम का दलदला आया हुआ है, दहशत छाई हुई है नूर हसन के नाम से खाली। तू जवाब ही नहीं दे पा रहा है। तुम दो शैतान हो लाइन पर, तुम दोनों जवाब नहीं दे पा रहे हो। मुसलमान इसी बात से फैसला कर लेंगे।
मुसलमान इसी बात से फैसला कर लेंगे कि वहाबियों देवबंदियों के यहाँ बगैर वुजू के नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाती है, शराब पीने की इजाजत दी जाती है, जिना करने की इजाजत जो है वो दी जाती है। बता बगैर वुजू की नमाज हो जाएगी? बता अजीजुर रहमान देवबंदी। फोन मिलाया इसने आपको एक बार ओ शैतान की औलाद बता। सब उठाया है, ये बखलाहट इसकी सवार हो गई। अरे बौखलाहट तो तुम्हारी है, बौखलाहट तो तुम्हारी है। तुम तो एक एक सुन्नत से जलते हो, तुम तो एक एक सुन्नत से जलते। तुम जवाब नहीं दोगे, मुझे मालूम है, तो गुफरान भाई मुझे मालूम है तुम जवाब नहीं दोगे। तुम क्या दोगे? तुम्हारी पूरी जमात देवबंदी जवाब नहीं दे पाती है। नूर हसन तुम जमातियों में, तुम देवबंदियों के यहाँ बगैर वुजू के नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है। तुम देवबंदियों के यहाँ बगैर वुजू के नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई। बता बगैर वुजू की नमाज होती है क्या? देखो मुसलमानों, बस इनके पास यही है, इनके पास यही सिर्फ यही बातें हैं, ये जवाब नहीं देंगे। इनकी पूरी जमातें देवबंद जवाब नहीं देगी। अच्छा रोक, मैं मुफ्ती राशिद को लाइन पर ले, भागना मत। अभी कह रहे थे कि देवबंदियत पूरी नूरहसन ने डरती है, खुद जो है दूसरों का सहारा ले रहा है। ड्राइवर का जो है तो टाइम भागना मत तुम दोनों, अगर भागे तो हरामी होगे वरना हलाली होगे। मैं मुफ्ती राशिद को लाइन पर लेता हूँ। हाँ जी, इनमें तो ये कह रहा है कि पूरी देवबंदियत नूरहसन भागती है, खुद जो है दूसरों का सहारा ले रहा है। हाँ भाग रहा है नूर हसन। वैसे नूर हसन कॉल मत काटना। गुफरान भाई आप जिस व्यक्ति को कॉल तेरा मुफ्ती राशिद देवबंद में जो पढ़ाता है, दारुल देवबंद का बहुत बड़ा आलिम है, दारुल इफ्ता में बैठता है। मेरा कॉल नहीं उठा रहा दोबारा। देवबंद में आके पता ले रहा है। देवबंदियत पर दहशत छाई हुई है, नूर हसन का कोई कॉल ही आप नहीं जिस उठाता। व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं फिर नहीं वह उठाता। उत्तर में आगे क्या करता रहता था? ये हजरत गुफरान भाई ये लोग दूसरों को बहुत बड़ा काला हजरत अहमद रजा लानतुल्लाह अलैह, उसका कहाँ नापाक पैर और कहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक नाम और हेलो हेलो जी, धीर कासमी देवबंदी साहब बोल रहे हैं। कितनी करूं? एक हेलो, अरे काट के तो कॉल काट के भाग गया तुम्हारा मुफ्ती। जी हमेशा दलील होकर हाँ, जाता है। कॉल काट के भागा तुम्हारा। बना लेवा करके ये हमेशा जब भी अहमद रजा डरते हैं, मेरे नाम से ही खाली डरते हैं। और अब मैं तुमको ऐसे वैसे दलील नहीं करूंगा, बहुत अच्छे तरीके से दलील करूंगा। रहने दो अभी। आप जिस व्यक्ति को जैसे और तो नूर हसन के नाम की दहशत छाई हुई है पूरी जमात देवबंद पर, मेरा कॉल ही नहीं उठाते। मारना छोड़ दे बे, ये डिंगे मारना छोड़ दे। करना क्यों पढ़ा ले रहा देवबंद में आकर के? ये जो है तो ना ये ज्या व्यक्तीस आपण कॉल केलेला आहे ती सध्या इतर कोणाशी बोलत आहे. आपण प्रतीक्षा करू शकता.
किंवा नंतर पुन्हा प्रयत्न करू शकता. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है. कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें. The person you're calling is busy on another call. देवबंदियन मुझसे भागती है, खुद मुफ्ती हारून नदवी भी कॉल नहीं उठा रहा है मेरा, कहीं बिजी आ रहा है दूसरी जगह. कहेगा देवबंदी मुझसे भागती है, खुद भाग रहा, दूसरों के पाना में जा रहा है ये. मुझे लगता है ना किसी मजार का चढ़ावा खाने गया है. चढ़ावा खाने गया. रजा खानी भिखारी होते हैं यही से. जी जी. वहाँ वैसे तो गुफरान भाई जी. जी. हेलो. हाँ जी. जी मौलाना नजर मोहम्मद साहब बोल रहे हैं. जी बोल रहा हूँ. मैं ये कह रहा था कि सोने का सही तरीका क्या है. है जी. किसी बंदे ने सोने का सही तरीका पूछा था कि किस तरह से सोना सुन्नत है. ऐसा मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ट्रैफिक है. अच्छा अच्छा, बाद में बताएंगे. ये देवबंदी यार पता नहीं कितने डरे हुए लोग होते हैं. नजर मोहम्मद तो पता नहीं कोई ना कोई बहाना लेके निकल ही जाता है, समझे. गाड़ी का बहाना लेके निकल गया कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ. रिक्शा ड्राइवर सीधा सा सवाल के उसका सीधा से जवाब देने में क्यों तेरी नानी. दुनिया देवबंदियत पर दहशत छाई हुई है नूर हसन के नाम. दूसरों को क्यों मिला रहे हो, तुम ही बात करो ना. अपने बाप को बुलाने जा रहे हैं नूर हसन. अपने मुंह बोले बाप को. क्या हो गया से जलालत का दूसरा नाम नूर हसन. यही हूँ खुद पे. अजीजों के मन भाई दीजिए ये. हाँ सही है. ये जो है बहुत बड़ा. हेलो. आप जिस हेलो. सलाम वालेकुम इत्तबाल हुदा. हाँ, दोनों कॉन्फ्रेंस में रह के ही बात करते हो. हाँ बिल्कुल. अच्छा. भाई दोनों भाई हैं. तो क्या नजरिया है आपका, क्या अकीदा है कि जो उस तरह से अगर सोए और उसको कोई सुन्नत तरीका बताए तो उस पर हुक्म क्या आएगा. सवाल मेरा था या आपका था. मैं पूछ रहा हूँ ना, आपका ये एतराज है कि अगर कोई उस तरह से सोता है तो नाम मोहम्मद की तौहीन हो गई, है ना. अगर कोई तौहीन करने वाला, जब मैं अगर कोई ये कहे कि मैं इस तरह से सोता हूँ कि मेरा पैर लफ्ज मोहम्मद का लफ्ज दाल बनता है, कोई ये कहे. सोने पर बात नहीं है, कोई ये कहे अगर, तो कहने वाला क्या है. अच्छा, तो कहने वाले पर हुक्म आप ही लगा दीजिए. हम क्या हुक्म लगाए, तुम लगाओ. फतवे आप लोग लगाते हो ना गुस्ताखी. भाई एतराज आपका है ना, हमारा थोड़ी है. मेरा तो ये एतराज था कि तुम्हारे घर के बुजुर्गों ने बगैर वुजू के, समझे, नमाज पढ़ने की इजाजत दी है, शराब पीने की इजाजत दी है, जिना करने की इजाजत दी है. मेरा तो ये एतराज था. तुम जवाब दे के भी नहीं गए. तुमने जवाब दिया, बताओ. मुजद्दिद का तो मामला साफ कर लो, नहीं उसके बाद आना. तुमने मेरे इस एतराज का जवाब दिया, ये बताओ. जब ये अच्छा एक मिनट, ये तुम्हारी कौन सी आदत है यार, सवाल पे सवाल कर देते हो, जवाब देते नहीं हो कभी. मैं एक बात कहता हूँ और हर बात कहता हूँ, हर बार, कि वहाबी देवबंदी इंसान जब तक नहीं बनता जब तक के अकल जाया ना हो जाए, अकल छिन ना जाए. अच्छा. समझे. हाँ, वहाबी देवबंदी वही बनता है जिसके पास अकल ना रहे. अकल छिन जाए, अकल से पैदल हो जाए, अकल से बर्बाद हो जाए, अकल से यतीम हो जाए. जिंदगी के, समझे, वही वहाबी देवबंदी बनता है. जिंदगी के जिसे खराब लगे वो सामने से हट जाए. चलिए, तो तुम्हारा इस पर क्या हुक्म है, वो हुक्म बताइए आप मुझे. अरे यार, मैंने तुमसे सवाल किया, उल्टे तुम मुझसे सवाल कर रहे हो यार. जो ये कहे कि मैं जब सोता हूँ नामे मोहम्मद का लफ्ज़. अच्छा, आप सोते हो, एक मिनट, आप सोते हो
उसी तरीके पर, सुन्नत तरीके पर, तो आपके पैर उस तरह बनते हैं कि नहीं बनते हैं, बताइए। मैं ये नहीं कहता कि मेरा, अरे फिर वही बात, अल्लाह मेरा पैर इस तरह, मैं कहता नहीं हूँ ना। कहने वाले पर हुक्म लगेगा, चलो अच्छा, चलो अच्छा फतवा ला के दो कि कहने वाले पर ये हुक्म लगेगा। चलो फतवा ला के, देवबंद का फतवा मान लोगे? हाँ मैं मान लूंगा। तो क्या तुम देवबंद वालों की बात मान लोगे, जो देवबंदी जमात के मौलवी हैं, तो ये तुम उनकी बात मान लोगे, ये बताओ। काम से कहीं मानते? अगर मैं कुफ्र का फतवा लगवा दूं तो? हाँ लगवाओ, गुस्ताखी का फतवा लगवा दूं तो? लगवाओ। नहीं दो रहमान भाई ये कह रहे हैं नहीं, लगवाओ। तुम किसी भी बड़े से बड़े आलिम को ले लो लाइन पर, ठीक है, किसी भी बड़े से बड़े आलिम को आप ले लो लाइन पर। लो ड्राइवर साहब कहते हैं कि फतवा लगवा दो, है ना? भाई तुम्हें नहीं तो कहा कि मैं फतवा लगवा दूं, तो मैं लगवाओ। आज तक जो फतवा लगा हुआ है उसको ये लोगों ने तस्लीम किया है। जो अहमद रजा पर फतवा लगा है, तुम किसी तो आज तक मानते नहीं है, तो क्या मतलब? देवबंदियों की औरतों ने सिर्फ हरामी बच्चे पैदा किए हैं, हलाली नहीं। देखो ये है ज़बान, सही बोल रहा हूँ, ज़बान है। मैं कह रहा हूँ किसी भी देवबंदी आलिम को तुम लाइन पर ले लो ये वही, और इस पर कुफ्र का फतवा लगवा दो। इस पर कोई भी अल्लाह ताला को गालियाँ बकी है भाई, सही बात, अल्लाह ताला को गालियाँ बकने वाले भी तुम हो यार, ये उसी का असर है। बहरहाल मुसलमानों में ये आपको बताना चाहता हूँ कि मुफ्ती हारून नदवी ने भी इस बात को यही कहा है कि जब पैर सकोड़े जाएंगे तो पैर लफ्ज़े दाल ही बन जाते हैं। और मुफ्ती राशिद कासमी देवबंदी ने भी किताब देने का मुझसे वादा किया है, देखते हैं वो कब उस बात का मुझे जवाब देते हैं और किताब का हवाला देते हैं। दूसरी बात, मुफ्ती मुनव्वर देवबंदी कासमी, उसने भी कहा है कि हाँ इस तरह सोना सुन्नत है और पैर जो हैं वो लफ्ज़ दाल की तरह बन जाते हैं। अपने अंग्रेजी यही तरीका सुन्नत है सोने का। अब ये दो जाहिल मौलवी हैं, ये मौलवी नहीं यानी गधे हैं ये लोग, तो इनको जाहिलों को ये नहीं मालूम कि हमारे मौलवियों ने क्या फतवा दिया है। इनके जो मौलवी गधे लोग हैं जो दारुल उलूम देवबंद से फारिग होके आए हैं, वो शैतान भी ये बता रहे हैं कि हाँ ये तरीका सोने का सुन्नत है। और जब इस तरह जब बंदा सोएगा तो पैर जो है वो लफ्ज़े दाद ही बन जाते हैं, लफ्ज़े मोहम्मद की शक्ल बन जाती है। जब बंदा इस तरीके पर सोता है, सुन्नत तरीके पर सोता है, तो लफ्ज़े मोहम्मद ही की शक्ल पैदा हो जाती है। तो ये वो देवबंदी हरामी लोग हैं जो जिना के नुत्फे से पैदा हुए हैं, जमात की मेहनत से पैदा हुए हैं। ठीक है मुसलमानों, अब मैं इनके मुफ्तियों की गुफ्तगू सुनवाता हूँ। आप हजरात मुफ्ती हारून नदवी और मुफ्ती मुनव्वर कासमी देवबंदी और जो मैंने मुफ्ती राशिद कासमी देवबंदी थे जो दारुल उलूम देवबंद के इफ्ता में बैठता है, दारुल इफ्ता में, उसकी मैं रिकॉर्डिंग इंशाअल्लाह आप हजरात के सामने रखता हूँ। ठीक है, इन जाहिलों से अब तुमसे मैंने एक एतराज किया था, तुम्हारे एतराज का तो जवाब मैं तुम्हारे घर से दूंगा ही दूंगा। तुमसे मैंने एतराज रखा था कि तुम्हारे जो मौलवी हैं वो बगैर वुजू के नमाज पढ़ने की इजाजत देते हैं, शराब पीने की इजाजत देते हैं, जिना करने की इजाजत देते हैं। क्या शरीयत में ये जायज है? जवाब दो। देखिए मुझे मालूम है मेरे एतराज का जवाब नहीं आएगा, मुझे मालूम है। पूरी वहाबियत देवबंदियत में जलजला आया हुआ है नूर हसन के नाम का। पूरी देवबंदियत में किसी देवबंदी औरत ने कोई ऐसा बच्चा ही नहीं जना है जो नूर हसन के किए हुए एतराज का जवाब देते सही मुकम्मल। तुम दोनों हरामी हो, जिना की पैदावार हो, मोहल्ले वालों की मेहनत का नतीजा हो, जमात की मेहनत का नतीजा हो, समझे? हाँ, तुम दोनों जो है जमात की मेहनत का नतीजा हो। और जो मुफ्ती और जो पाकिस्तान के मुफ्ती ने जो फतवा दिया था उस औरत को, तुम उसी फतवे की असल हो, समझे? तुम उसी फतवे की असल हो हरामियों। अब मैं ये तुम्हारी दोनों की रिकॉर्डिंग में डालता हूँ यूट्यूब पर। हेलो जी, हेलो जी, मुफ्ती हारून नदवी साहब बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। अच्छा, वो एक भाई पूछ रहे थे कि वो सही सोने का सुन्नत तरीका क्या है। अच्छा तो, जी तो सुन्नत तरीका पूछ रहे थे, किस तरह से सोना सुन्नत है, किस तरह से सोना चाहिए? सुन्नत तरीका तो सिर्फ ये है कि आप बिस्तर झाड़ें, ये नबी की सुन्नत है, 3 मरतबा बिस्तर झाड़ें। फिर दूसरे है कि दाई करवट पर सोए और प्यारे आका की प्यारी प्यारी बताई हुई दुआ पढ़कर सोए।
हाँ, मतलब किस अंदाज में जिस्म, ये 3 मतलब अहम हाथ सुन्नतें का- हैं। जी, हाथ कैसे रहना चाहिए? हाथ और- सीधा हाथ जो है वो सीधा हाथ। कान और गालों के बीच रहे, यानी अपनी जी। हथेली में अपना चेहरा रहे, ऐसा समझ जी 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 जी, समझ रहे। हाँ, और रुख ऐसा ही जो है मैंने किबले बताया की था तरफ हो। हमको। हैं? रुख जो है वो किबले की तरफ हो तो जी। ज्यादा बेहतर। जी जी जी, ऐसा। नहीं वो किबले की तरफ को ही बताया है वैसे तो, है ना? बिल्कुल जी। बिल्कुल। ये है और- कि नहीं, वो सोने में किबले की तरफ का सिर्फ पैर नहीं होना। हाँ, किबले की तरफ पैर नहीं होंगे उधर, हाँ हाँ। जी, सिर्फ है ना? साइड रहेगी, यानी हम अगर पर्वत साइड को यानी पहाड़ साइड को हमारा सर होगा और दक्खन साइड को हमारे पैर होंगे। यस यस हाँ यस। तो और जैसे बंदा इस हालत में सोता है तो मतलब लफ्ज मोहम्मद बन जाता है। यस, ऐसा गोल पैर जो है वो दाल बन जाते हैं। पैर दाल बन जाते हैं। जी जी जी, यस, हाँ है ना? हाँ, तो ऐसे ही मैंने उसको बताया तो बोले अच्छा, मैंने कहा यही तरीका है बिल्कुल, सुन्नत। बिल्कुल। तो बोले सुन्नत कहाँ का लिखा यही है? मुझसे बोले कहाँ लिखा है? तो मैंने कहा यार लिखा हुआ तो मुझे ही पता नहीं है, मगर सुन्नत तरीका यही उलमा ने बताया है। हाँ हाँ। अब एक आलिम ने हमको बता दिया है और उससे जी। किताब पूछना, इसका मतलब आपको आलिम की बात पे भरोसा नहीं है। जी जी जी, तो मैंने आलिम सोचा ने जब कि बताया तो उससे कहीं सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा। जी, तो मैंने हाँ, सोचा कि लाओ मैं किताब उससे सुनो, किताब उससे पूछी जाए जो जाहिल आदमी आपको बता रहा हो। जी जी, सही तो बात है। तूने कहाँ पढ़ा या तूने किससे सुना, हाँ समझ रहे आप? जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। जज़ाकल्लाह। हाँ, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।